Hi, good morning. Good morning, ma'am. Very good morning, everyone. Good morning. Very good morning. So today Good we are morning. finally here at the last Good morning. past. So from tomorrow we'll be working on our dreams, which is super cool. Once just bring it on the screen. So today is day 12. So this book, for people who are new, this book is segmented into 3 parts. The first part is the first 12 chapters, which deals with past and present. Okay, so first whatever holes we've dug in the past by complaining, we have filled that up already with lots of gratitude. And after that, from tomorrow, we'll be working only on our dreams. So we'll refine our dream list that we have made. We may need to edit it because समय के साथ साथ चलते चलते नए ड्रीम्स आ जाते हैं, कुछ एक्सपेंशन होती है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज आ जाते हैं. तो कल हम अपनी बस कल से लेके अगले 10 दिन बस हम अपनी ड्रीम लिस्ट पे काम करेंगे. और आप देखना कितनी जल्दी वो जो सपने जैसे दिखते थे पहले, नाउ दे स्टार्ट एक्चुअलाइजिंग. और उसके बाद 22nd चैप्टर के बाद से 23rd चैप्टर से फिर हम अपनी पावर को लोगों के लिए यूज करते हैं टू मेक देयर लाइव्स हैप्पी एंड टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, अपने तरीके से. ठीक है, सो आज हमारा वही लास्ट चैप्टर है अपने पास्ट के बारे में. और इसमें पास्ट में जाके आज हम ऐसे लोगों को थिंक करके चूज करेंगे who made a difference to our life, जिन्होंने हम मतलब हम जो भी हैं आज, like उनकी वजह से हैं. वो कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स में भी इंडिविजुअली मॉम या डैड, like इस तरह से हमको सोचना है कि कौन वो 3 लोग हैं हमारी जिंदगी में पास में बचपन से लेके अभी तक जिनकी वजह से वी आर हु वी आर. हो सकता है हमारा करियर उनकी एडवाइस की वजह से हुआ हो सकता है कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हमको सपोर्ट किया हो सकता है हमको कुछ करना था बहुत बड़ी चीज, लेकिन उसके पैसे नहीं हो तो उन्होंने हमको उस चीज के पैसे दिए थे, या जो भी जिस भी तरीके से. ठीक है, हम सबकी एक यूनिक जर्नी है लाइफ की, तो उसमें से हमको चूज करना है that who are those 3 people who have made a difference to our life. Okay, that's what it's about. Magical people who made a difference. And इसमें image में हम will just see. तो इसमें 3 फोटो, एक एल्बम रखा है. एल्बम जनरली सिग्निफाई करता है पास्ट को, है ना. एल्बम हम बनाते ही तब थे जब मतलब कोई अच्छी फोटो कैप्चर करनी होती थी और जो बहुत अच्छी फोटो लगती थी उनको हम एल्बम बना के, एल्बम का जमाना चला गया है. आजकल एल्बम डिजिटल एल्बम्स बनते हैं. ऑफ कोर्स एल्बम्स है, मेरे भी डेस्कटॉप पे एल्बम है, तो एल्बम्स में फोटोज अब हम वहां रखते हैं, बट ये एल्बम है, पुराना निकाला हुआ है. पुराना निकाल के इसमें से 3 लोगों की फोटो लगी हुई है जिन्होंने मे बी रोंडा बर्न की लाइफ में डिफरेंस लेके आए. ठीक है, तो आप उनके साथ हो सकते हो या उनकी इंडिविजुअल फोटो, मतलब इट इज टू डू विद देम. और उनको हम इसमें खूब सारी उसके आसपास ग्रैटिट्यूड की डस्ट है. सो दैट मीन्स दैट हमको उनको बहुत सारा थैंक यू करना है जिनकी वजह से भी आज हम हैं जो हैं. So that's about it. Or we'll get reading. So Neeti, are you there logged in? Yeah. Good morning, ma'am. Yeah. Day 12. The magical people who made a difference. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. This is by Albert Schweitzer from 1875 to 1965. Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. Each one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had
until well into the future when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know and they appeared in your life very briefly before a random act of kindness that touched you to the core. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I've lived throughout my life. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. Make sure you do this magical practice with all 3 people in the one session because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up the magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. Here is an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream, and I couldn't be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. It's very important that you say the reason why you are grateful. And you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. If you're not in position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you're writing a letter. When you have completed this practice,
you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. Magic practice number 12, magic people who made a difference. Number 1, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2, find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Number 3, work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you. Thank you so much, Neeti. So this chapter, अब हम कम लिखना शुरू करेंगे. मतलब अब जो हमारे assignments है, we will not be writing too much. We will use more of imagination. कल से तो खैर पूरा imagination पे चलेगा. बहुत कम instances ऐसे होंगे where we will need to write and do the assignments. क्योंकि power of visualization and वो बहुत strong हमारी होनी है. उसको kinesthetics बोलते हैं. मतलब ये बहुत आसान नहीं होती है विजुअलाइजेशन करना, बिकॉज लोगों का दिमाग बहुत कहते हैं ना मंकी माइंड होता है, तो बहुत इधर उधर, जैसे आप किसी चीज को सोचना या मतलब ऐसे विजुअल्स उसके दिमाग में सोचना शुरू करते हो, you know, distractions आ जाते हैं, and then you're not able to focus and concentrate, and you come back to your worries and your concerns, and again you go back to visualization. ठीक है, तो ये धीरे धीरे ये पावर स्ट्रेंथन होती है और इसको करनी भी बहुत जरूरी होती है. So in this particular chapter, शुरू में we'll just go to the beginning. जो पहली line है बहुत beautiful है, जो पहला quote है. It talks about that कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जिंदगी में बस चलते चले जा रहे हैं, लेकिन we are not getting anywhere in life, है ना? या कभी कुछ problems आती है, समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, फिर suddenly हमारी life में कोई आता है जो हमको direction देता है. ठीक है, वो हो सकता है हेल्प हो, वो हो सकता है एडवाइस हो, वो हो सकता है हमारा थॉट प्रोसेस ही उसके बाद चेंज हो जाता है. कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी को एक मायने मिलता है, मीनिंग मिलता है, और उसके बाद से लाइफ इज नॉट द सेम अगेन. ओके, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट, लाइक वो हैडवे का सॉन्ग है जो हम टोनी रॉबिन्स की क्लासेस करते हैं. उसमें एक हैडवे जो पर्सन है, इट्स लाइक अ ग्रुप, मतलब पूरा म्यूजिशियंस का, तो उन्होंने स्पेशली टोनी रॉबिन्स के लिए सॉन्ग बनाया है, वो लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन, लाइफ इज चेंजिंग. कभी सुनना आप, ग्रुप में कोई डाल देगा, इट्स हैडवे, HADDAAWAY. सो ही स्पेशली संग इन फॉर टोनी रॉबिन्स एकेडमी. और जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी तो इसी सॉन्ग पे, मतलब वो हमेशा एक सॉन्ग चूज करते हैं, और जब हमारे सेशंस होते हैं तो उसी सॉन्ग पे हमको पूरे सेशन में डांस करना पड़ता है, मतलब जंप करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, मूवमेंट, बिकॉज ही सेज दैट यू हैव टू कीप एनर्जाइजिंग योरसेल्फ. सो हैडवे का वही वाला म्यूजिक, द लिरिक्स आर दिस ओनली, that life will never be the same, life is changing, and it's a beautiful song. You can dance to it every day, and it is growth, progressive, and especially वो टोनी रॉबिन्स एकेडमी के लिए गाया हुआ है ना? And उसको सुन के, so that is what happens. So there are people in our life जिनकी वजह से लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो जाता है. जिस रोड पे आप चल रहे थे उससे पट से आप दूसरी रोड पे चलना शुरू कर देते हो.
आपको जिंदगी जीने के तरीके आ जाते हैं, आपको कभी गाइडेंस मिल जाती है, कभी आप किसी भी रूप में आपको जो हेल्प सहायता जो चाहिए थी वो पर्सन आपको देता है ना। सो ये जब हमारी हमारी बत्तियां जब बुझने लग जाती हैं तो फिर कोई और आके लैंटर्न लेके आता है और हमको रास्ता दिखाता है लाइफ में। सो दैट इज व्हाट इट सेज हियर, एट टाइम्स आवर ओन लाइट गोज आउट एंड इज रीकिंडल्ड बाय अ स्पार्क फ्रॉम अनदर पर्सन। ठीक है, सो ईच वन ऑफ अस, आज वो वाला दिन है कि हमको ये बैठ के सोचना है कि कौन वो 3 लोग हमारी जिंदगी में आए जिनकी वजह से जिंदगी अब वैसी की वैसी नहीं है। और ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस होती है, मतलब टू गो बैक एंड थैंक दोज पीपल। ठीक है, और उनको आज ग्रैटिट्यूड देने का मतलब इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि कई बार ना पता नहीं लगता है कि उस पर्सन ने हमारे साथ क्या किया। हमको बहुत छोटी चीज लगती है कि अरे ये क्या है, ये तो सब नॉर्मल है, ठीक है, ऐसा है। लेकिन आज से 1 साल के बाद, 6 महीने बाद, 10 साल के बाद आपको पता लगता है कि ओ माय गॉड, अगर वो नहीं होता पर्सन तो फिर आज मैं यहाँ पे नहीं होती। कई बार ऐसा होता है, isn't it? सो आज उनको दिल से थैंक यू देने का दिन है जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया, हु हैव लाइटेड द फ्लेम फॉर अस। ठीक है, सो ऐसे ही तो इसमें कभी भी लाइफ में इन ऑल दीज इयर्स जो हम जिए हैं, कोई हेल्प, कोई सपोर्ट, कभी गाइडेंस हमें उस पर्सन से मिला जब हमें उसकी बहुत जरूरत थी, जब हम बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गए थे, हम होपलेस हो गए थे, हमें लग रहा है कि आगे की जिंदगी में अब क्या होगा। उस वक्त कोई आता है और हमारी जिंदगी को बहुत मीनिंग दे देता है, या कोई हेल्प या कोई सपोर्ट या गाइडेंस, है ना, जिसकी एनकरेजमेंट से, जिसकी गाइडेंस से हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है और होती चली जाती है। हो सकता है कि आपको करियर का डायरेक्शन किसी ने दिया हो, किसी ने आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज, जब आपका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था, कोई आया उसने बोला आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लो, वहां हो जाएगा, और वो बहुत अच्छा कॉलेज है। हो सकता है आपको अपना कोई बिजनेस शुरू करना हो और उस बिजनेस में आपको उस वक्त इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना इनफ रेवेन्यू नहीं था, और उस पर्सन ने, किसी और ने आके आपको उस वक्त फाइनेंशियली सपोर्ट किया, ऑल्दो आपने वो सारे पैसे बाद में लौटा दिए, ठीक है, बट उस पर्सन ने सपोर्ट किया। हो सकता है किसी आपके एक ग्रैंड पेरेंट ने आपको किसी जगह पे स्पॉन्सर किया हो जहां आपको जाना था, या फिर आपको किसी से शादी करनी थी और आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, और घर में कोई एक पर्सन था जिसने who stood by you and said that no, she will get married to the person of her choice or he will get married to the person of the choice, है ना। इस तरह से लेट्स सी कि कौन वो 3 लोग हैं जिनकी वजह से हम जो भी हैं आज हैं। तो हमको बस यही आज पीछे मुड़ के देखना है और देखना है who were those 3 particular people who were pivotal in magically changing the direction of your life for the better। अब वो कोई भी हो सकता है, अंकल, आंट, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट, फैमिली मेंबर, डॉक्टर, नर्स, बेस्ट फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है, पता नहीं है। और या कोई जिसने आपको आज पैशन, अपना जो भी आपका लाइफ का पैशन था वो परस्यू करने के लिए आपको कोक्स किया, ठीक है। सो और कई बार ये होता है हम उनको जानते भी नहीं, वो रैंडम लोग होते हैं, ठीक है। हम किसी पार्टी में फ्रेंड ऑफ फ्रेंड से मिले, हम उनको पर्सनली नहीं जानते थे, लेकिन उस वक्त जो आपका कॉन्वर्जेशन हुआ वहां से आपको बहुत बड़ा कोई क्यू मिला जिस रास्ते पे आप चले। अब उस पर्सन को तो आप जानते नहीं हो, दोबारा नहीं मिले आप, उसको पता भी नहीं आपको उसका फोन नंबर क्या है, लेकिन कम से कम आज याद कर लेंगे उनको कि उन्होंने किस तरह से हमारी लाइफ को टच किया था उस टाइम। फिर रोंडा बॉर्न ने अपनी ग्रैंड मदर को थैंक यू बोला, उनमें से जो भी उनके 3 लोग हैं उनमें से एक उनकी ग्रैंड मॉम है जिन्होंने उनको बुक्स और कुकिंग का पैशन दिया, ठीक है, और नेचर का पैशन दिया, कंट्री साइड का। और इस तरह से वो बुक्स पढ़ पढ़ के रोंडा बर्न ने खुद अपनी बुक्स लिखी। कहते हैं ना, जो बार बार आप करते हो और सोचते हो और देखते हो, आप वैसे ही बन जाते हो आफ्टर सम टाइम, ठीक है। और कुकिंग बिकेम अ पैशन ऑफ माइंड फॉर ओवर 20 ईयर्स से रोंडा बर्न कुकिंग के फील्ड में है। और लव ऑफ बुक्स जो उनकी ग्रैंड मॉम ने दिया था, इवेंचुअली उसकी वजह से वो एक राइटर बनी और इतनी बड़ी राइटर बनी। इनकी बुक्स की सेलिंग, मतलब इनकी एक बुक से पता नहीं कितनी जनरेशन अर्न कर सकती हैं, इनकी इतनी ज्यादा बुक्स पॉपुलर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हम जैसे लोग जितने भी हम हैं, 300-500 पीपल ऑन द ग्रुप एंड सो मेनी अदर्स जो इन बुक्स को पढ़ रहे हैं, तो हम भी इनके काम को आगे प्रोपेल कर रहे हैं ना। मतलब इनकी बुक्स को हमने कितनी तवज्जो दी हुई है, मतलब वी आर इंटरनलाइजिंग अपनी जिंदगी में, हम इनकी किताबों को यूज कर रहे हैं और अपनी जिंदगी इतनी ब्यूटिफाई कर रहे हैं हर तरीके से
इतनी ये पावरफुल बुक्स है ना, एंड बाय गॉड्स ग्रेस इनकी बुक्स आगे बढ़ती जाएं और पूरा वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करे, और ग्रैटिट्यूड एक कंपल्सरी सब्जेक्ट हो जाना चाहिए हर एक स्कूल में, ताकि बच्चों को ये पता लगे कि किस तरह से करते हैं, है ना। सो दिस इज हाउ वी नीड टू बिकम। सो ग्रैंडमदर को थैंक यू आज बोल रही हैं कि किस तरह से उनके ग्रैंडमदर ने उनका कोर्स ऑफ लाइफ भी चेंज कर दिया। सो आज की प्रैक्टिस, अब ये प्रैक्टिस लिख के नहीं करनी है, ऑल्दो हमको ऑप्शन मिला हुआ है कि अगर आपको ऐसा स्पेस अपने घर में नहीं मिलता, कई बार होता है यू डोंट हैव अ रूम टू योरसेल्फ एंड आप पब्लिकली या आपको बार बार दरवाजा बंद करके करना पड़ता है और वो सारी चीजें, ठीक है, अगर स्पेस नहीं है आपको तो आप ये लिख के कर सकते हो प्रैक्टिस, लेकिन तरीका लिख के करने वाला नहीं है। तरीका करने का इसका है कि आपको उनको बोल के करना है। तो आज एक क्वाइट प्लेस ढूंढो और उन 3 लोगों के बारे में 3 लोगों की लिस्ट बनाओ कि कौन वो 3 लोग हैं बचपन से अभी तक जिन्होंने मेरी जिंदगी को मायने दिए या मुझे सपोर्ट किया या मुझे हेल्प की या जो भी है, ठीक है। उन तीनों के नाम निकालने हैं और उनको आपको आज ऐसे जैसे आप बात कर रहे हो वैसे आपको उनसे बात करनी है, यू नो, लाइक एज इफ दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और उनको बताना है कि कैसे वो आपकी जिंदगी में उन्होंने क्या ऐसा किया जिसकी वजह जो आपको बहुत टच किया और उसकी वजह से आपकी जिंदगी कैसे बदली और क्या डिफरेंस आया आपकी जिंदगी में उनकी वजह से, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, चाहे अगर वो जिंदा भी हैं नहीं है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके कोई ग्रेट ग्रैंड मॉम थी या ग्रैंड मॉम ग्रैंड फादर, मे बी दे आर नॉट अलाइव राइट नाउ, बट आप उनके लिए कर सकते हो टॉक टू देम आउट लाउड, एज इफ वो आपके सामने बैठे हैं, ठीक है। ये मॉर्निंग की प्रैक्टिस नहीं है, ये आप दिन में किसी भी बार कर, एनी टाइम ऑफ द डे यू कैन डू इट, सुबह दोपहर शाम को जब आपको फुर्सत मिलती है और जब आपको स्पेस मिलता है अकेले फोकस के साथ बैठने का, अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे कर दो, उसके बाद ये करना, क्योंकि जो व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस और वो सब होते हैं वो बहुत डिस्ट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। वैसे उन्होंने हमारे दिमाग को बहुत खराब किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा फोन का यूज कम, ओके, एंड स्पेशली प्रैक्टिस करते वक्त बिल्कुल भी नहीं। सो उसके बाद अब आप क्वाइट प्लेस पे बैठे, आपके पास उन तीनों के नाम है, अब पहले पर्सन को उठाओ, सपोज वो आपकी मम्मा है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी तो ऑफ कोर्स मेरी लिस्ट में सबसे पहले मेरी मदर का नाम आएगा, है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा किया, शी हैड टू टेक अप अ जॉब बिकॉज she had to educate us children and give us a beautiful life, especially when my father went away and all that. So वो सारा तो मैं अपनी मम्मी से बात करूंगी और मैं उनको सब कुछ बताऊंगी that you did this and that totally changed the course of my life and इतनी लग्जरीज के साथ उन्होंने हमको, मतलब बहुत उनको बहुत हार्डशिप्स हो रही थी बट हमको उन्होंने पता भी नहीं लगने दिया। तो मैं वैसे ही बात करूंगी कि अब मुझे पता लगता है that how difficult it was to wake up every day and working for 6 days and never getting a छुट्टी on a weekend, and how you worked and she was in a place where it's a man's world, वहां पे women बहुत कम काम करती हैं, तो वो बहुत कभी कभी डिप्रेसिव होके आती थी। तो अब समझ में आता है सारा, बट शी kept doing it because we were there as children, जिनकी लाइफ उन पे डिपेंडेंट थी। सो इस तरह से देन आई स्पीक टू माय मॉम, ओके। फिर नंबर 2 पे देन I'll speak to my doctor who saved my life when I had passed away. I had passed away in one of the years. तो मुझे वो सारे एक्सपीरियंस है मरने के बाद कैसी जिंदगी लगती है, ठीक है। सो वो एक्चुअली कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, फिर रात को 12:30 बजे मैं हॉस्पिटल गई और वहां में डॉक्टर केम एट 1:15 और रात को 1-1:30 बजे, और उन्होंने मेरी पल्स तो पहले चली गई थी, फिर पल्स रिवाइव करी, फिर 20 की पल्स थी, ऐसे में उन्होंने मेरी सर्जरी करी। तो उसके बाद मुझे 10 दिन कुछ याद नहीं है कि मैं कहाँ थी क्या थी, ठीक है। वो सर्जरी जैसे तैसे हो गई, लेकिन लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पस था, मिशन था, ठीक है। तो इसलिए जान वापस आई उसके थोड़ी देर के बाद, बहुत दिनों के बाद, फिर मैं like I got revived, और उन डॉक्टर की वजह से जिन्होंने मेरी जिंदगी
लाइक सेव करी और मुझे दोबारा नई जिंदगी मिली थी, तो मैं उनसे बात करूंगी। तो इस तरह से आई विल कीप गोइंग फॉरवर्ड, है ना। सो दैट इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज। और करियोग्राफ के लिए भी देयर वाज समबडी, कल मैंने आपको बताया था, समवन कॉल्ड अंबिका बत्रा हु got my foothold into the current place of work, which has given me a lot, like hum mutually grow kiye hain, the company is grown because of me, I have grown because of the company, and together we have risen. And every day, I make my mental growth chart of how my organization is growing और मैं कैसे value add कर रही हूँ। तो इस तरह से जिंदगी अब आगे। सो ये 3 मैं सोचूंगी और बात करूंगी इन तीनों लोगों से सिंगल शॉट में। ऐसा नहीं कि एक से सुबह कर लिया और फिर एक से दोपहर को करूंगी, एक को बाद में 1 घंटे के बाद, ठीक है। तीनों का इकट्ठे करना है, एक जगह बैठ के। प्लेस ऑफ सिटिंग भी चेंज नहीं करना है आपको, एक ही जगह बैठ के पहले पर्सन से बात करनी है, अच्छे से दिल खोल के उससे बात करो और उसको बहुत शुक्रिया करो दिल से, फिर दूसरे से करो, फिर तीसरे से करो। तो ये प्रैक्टिस है। और अगेन एज आई सेड, दिन में किसी भी टाइम आप कर सकते हो इसको। और जोर से बोल के टॉक आउट लाउड, स्पेशली लिखा हुआ है ना, वर्क विद 1 पर्सन एट अ टाइम, टॉक आउट लाउड टू ईच पर्सन एज इफ वो आपके सामने बैठे हैं, और उनको सारे रीजन बताओ कि आप उनको क्यों ग्रेटफुल हो और किस तरह से उन्होंने आपकी जिंदगी बदली। और तीनों का इकट्ठे बैठ के करना है। मेक श्योर यू डू दिस मैजिकल प्रैक्टिस विद ऑल 3 पीपल इन 1 सिंगल सेशन, बिकॉज उससे आपकी फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड एक नए लेवल पे पहुंचती है, ठीक है। सो दैट इज हाउ। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोंडा बर्न ने किसी और का, मतलब जो भी उनका फ्रेंड्स थे, शायद फ्रेंड्स थे, तो उस फ्रेंड ने अपनी फ्रेंड को बोला है, सरा, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. मतलब आपने उस वक्त मेरी हेल्प की जब मैं बिल्कुल लॉस्ट और कंफ्यूज था, और आपने आके मुझे एक छोटी सी एडवाइस दी, और जो भी आपने बोला उसके बाद मुझे एक करेज आया कि मैं भी अपने सपने को चेस कर सकता हूँ। और आपके एडवाइस की वजह से मैं फ्रांस गया और वहां पे मैंने शेफ की जॉब करी, और आज की तारीख में मैं अपने सपने का प्रोफेशन जी रहा हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सब आपकी वजह से है, जो आपने उस दिन मुझे बोला था। थैंक यू सारा, ठीक है, इस तरह से उन्होंने बोला है। सो इसलिए हमको भी रीजन बता के बात करनी है कि किस तरह आपने मेरी लाइफ की, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे लिए लिखते हैं और मेरे पास वो आता भी है मैसेजेस, तो उसमें आप बहुत अच्छे से रीजन लिखते हो, कि ये हुआ, आपने ऐसे बोला था, उसकी वजह से ये हुआ, विच इज सो ब्यूटिफुल, तो बहुत डेप्थ में जाना होता है। लेकिन आप मुझे छोड़ के देखो, ये बुक्स तो हम सब साथ में पढ़ रहे हैं, आप मेरे अलावा 3 लोग ऐसे देखो कि कौन आपकी जिंदगी में आए थे जिनकी वजह से आपकी जिंदगी चेंज हुई है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है आप कितना भी लंबा आप इसको कर सकते हो। सो एंड यू इसकी कभी अति नहीं कर सकते। इसमें लिखा है ना, यू कांट से टू मच, दैट मीन्स आप इस चीज को कभी भी ओवरडू नहीं कर सकते। आप जितना करोगे उतना ही कम है। अगर आप उनसे 15 मिनट भी एक जने से बात कर रहे हो ना, वो भी कम ही होता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की कोई सीमा नहीं होती है। आप कितना भी कर सकते हो, जितना करोगे उतनी आपकी जिंदगी में पोर होगा। जो एनर्जी आप अपनी लाइफ से छोड़ रहे हो वो वापस आती है आपकी जिंदगी में मल्टीप्लाई होके, और आपकी लाइफ इज नेवर द सेम अगेन। Okay, so it says that जितना ज्यादा बोलोगे उतना अच्छा है, because more amazing will be the results. Okay, और आप देखोगे मैजिक अब हर एरिया आपके लाइफ में एक्सप्लोड होने लगा। एक्सप्लोजन का मतलब होता है बूम, ठीक है, इस तरह से। तो वो बूम की तरह आएगा मैजिक आपकी जिंदगी में। और it says that it numbers among the most powerful acts of gratitude ever performed. Okay, सो मतलब ये सबसे पावरफुल एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड है जो आप कभी भी परफॉर्म कर सकते हो। वो द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस। हमको पता नहीं होता कई बार छोटी चीजों के लिए हम जब थैंक यू निकालते हैं, ढूंढ के, खोद के, गुरेद के, ठीक है, तो हमको पता नहीं होता कौन सा वाला थैंक यू हमारी लाइफ को स्पिन कर रहा है। इसलिए करते रहो बस ये वाली प्रैक्टिस, ठीक है। और इसमें एक और वो सेकंड ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है, स्टैंड बाय तरीका प्रैक्टिस करने का,
कि अगर आप पर्सन से आउट लाउड नहीं बात कर पाते, आपको घर में अपनी स्पेस नहीं मिलती है एंड यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल, तो फिर आप ये प्रैक्टिस लिख के कर सकते हो, जैसे आप चिट्ठी लिखते हो। जैसे पुराने जमाने में इनलैंड लेटर होते थे, उसमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, ठीक है, तो आप चिट्ठी लिख के भी कर सकते हो इसको, अपने खुद की चिट्ठी अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में भेजनी नहीं किसी को, अपने पास ही रखनी है, ठीक है। और इस प्रैक्टिस को करने के बाद एक बहुत बड़ा फर्क आपको लगेगा अपनी जिंदगी में, इन द वे दैट यू फील, ओके। एंड अंदर से आपको एक ना फेदर जैसे लाइटनेस फील होगी, और आप देखोगे कि आप ब्यूटीफुल थिंग्स अट्रैक्ट करना शुरू कर गए हो, ठीक है, जो पहले नहीं आ रही थी, जिन चीजों में आपको एफर्ट लगा था, अब बड़ी आराम से वो आपकी जिंदगी में होती जा रही है, ठीक है। और जितना ज्यादा हैप्पीनेस की चीजें आएंगी, वो एनर्जी ऐसी होती है कि मल्टीप्लाई होती है, तो उतनी ज्यादा आप देखोगे कि यू नो थिंग्स इन योर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग एंड लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन। आई एम रिपीटिंग, आई डोंट नो व्हाई वो हैडवर्क का सॉन्ग मेरे बार बार मन में आ रहा है, ठीक है। एंड सेज दैट्स द मैजिक ऑफ लाइफ एंड दैट्स द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड दिस इज हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो आज की प्रैक्टिस, जब भी आज प्रैक्टिस अगर आप कोई भी कर रहे हो, तो जैसे काउंट माय ब्लेसिंग कर रहे हो ना, तो ऊपर उसको टाइटल कर दिया करो, काउंट माय ब्लेसिंग्स, ठीक है। सो आज भी जब आप बोल के कर रहे हो, तो बोलना दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ दोज मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। किसी भी चीज का टाइटल दे देते हैं ना, किसी को नाम दे देते हैं, तो अच्छा होता है ना, यूनिवर्स को भी अच्छा लगता है। सो हर प्रैक्टिस को आप कोई नाम, हर नाम से ही होती है वैसे तो ये सारी प्रैक्टिसेस, है ना, मैजिक मनी, मनी मैग्नेट, तो ये सब नाम से ही होती है। तो टाइटल जरूर, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का। अगर किसी भी चीज को आप किसी चीज से जोड़ लेते हो, है ना, हम सबके भी तो नाम होते हैं ना, हमारे टाइटल होते हैं। तो सोचो अगर कोई नाम से नहीं, हमको पता ही नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं, रैंडम, है ना। जैसे अगर एकदम से कोई बोलेगा दीप्ति, तो मुझे पता होगा कि वो मुझसे बात कर रहा है, तो मेरा टाइटल है दीप्ति, किसी का टाइटल है सुनीता, है ना। तो इस तरह से, सो दिस इज हाउ। तो इसका टाइटल आज का है मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, क्योंकि वो जादुई लोग हैं, ठीक है, और यूनिवर्स ने उनको भगवान का रूप लेके हमारी जिंदगी में भेजा था, और तब हमको नहीं रियलाइज हुआ, लेकिन आगे जाके हमको पता लगता है, वाओ अगर ये नहीं होता तो फिर ऐसा होता ही नहीं, है ना। पहले उस वक्त हमको मे बी हम रियलाइज भी नहीं करते, बट लाइफ बदलती है ना उनकी वजह से। फिर सुबह का प्रैक्टिस, जब काउंट माय ब्लेसिंग्स आप लिखोगे, तो उसमें आपको 10 ग्रैटिट्यूड लिखना है, रीड करना है, और एक एक के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, ठीक है। उसके बाद आज की प्रैक्टिस, एक शांत जगह ढूंढो। जब कोविड चल रहा था तो हमको कार में बैठ के करने को बोला था, मतलब स्पेशली कहा था कि गो बैक टू योर कार्स, सिट देयर एंड डू इट, यू नो, बिकॉज क्वाइट प्लेस और कहाँ मिलती, सब घर में ही होते थे। सो फाइंड अ क्वाइट प्लेस अलोन सम टाइम ड्यूरिंग टुडे एंड एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। आपको ये प्रैक्टिस रात को करनी है, आप 6, 7, 7 बजे, 8 बजे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो क्वाइट प्लेस अलोन सम टाइम टुडे, और उन 3 जनों की लिस्ट बनाओ जिन्होंने आपकी डिफरेंस लेके आए जिंदगी में। वर्क थ्रू द लिस्ट 1 पर्सन एट अ टाइम, उनसे आउट लाउड आप बोलो, और उनको सारे रीजन बताओ कि किस तरह उन्होंने आपकी जिंदगी बदली, है ना। और फिर उसके बाद जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप इन द नाइट, मैजिक रॉक प्रैक्टिस, हाथ में पत्थर लेके यू हैव टू थिंक थ्रू द डे, क्या क्या हुआ, स्कैन बीनीथ द सर्फेस, स्क्रैच बीनीथ द सर्फेस, स्कैन थ्रू द डे, और आप ढूंढो कि अच्छा ये हुआ और क्या हुआ, मैंने चाय पी थी, कितनी अच्छी थी, आज की चाय बहुत टेस्टी थी, इतना अच्छा उसमें अदरक का स्वाद आ रहा था, देन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द डे। सो थिंक मोर थिंक मोर थिंक मोर, ठीक है, पूरे दिन भर का, और उसमें से आप बेस्ट चीज निकालो कि अच्छा बेस्ट चीज ये थी, और उसके लिए आप थैंक यू बोल के सो जाओ, ठीक है। कभी कभी वो बेस्ट चीज बहुत बड़ी नहीं होती है, वो बहुत छोटी सी होती है, कि किसी ने गरम गरम बहुत टेस्टी कुछ बनाया था और आपने खा लिया, या आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कहीं से कुछ ऑर्डर किया, या आपने किसी से इंटरेक्ट किया फोन पे और वो कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छा था, इट जस्ट कुड बी एनीथिंग, ओके। सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे, and we go to the next book, Power of the Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy, and where we are almost wrapping up the conclusive part ऑफ द बुक। जो हमने सक्सेस चैप्टर अभी तक हम कर रहे थे, हमको बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंसेस मिले हैं अपनी लाइफ में सक्सेस पाने का, और दैट्स अबाउट इट। सो पुष्पिंदर, यू वुड लाइक टू रीड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Highlights to recall. First, remember that subconscious mind has determined
the success and wonderful achievements of all great scientific workers. Second, by giving your conscious attention and devotions to the solution of the perplexing problem, your subconscious mind gathers all the necessary information and presents it full blown to the conscious mind. Third, if you are wondering about the answer to a problem, try to solve it objectively. Get all the information you can from research and also from others. If no answer comes, turn it over your subconscious mind prior to sleep. And the answer always comes. It never fails. Fourth, you do not always get the answer overnight. Keep on turning your request over to your subconscious until the day breaks and the shadows flee away. Fifth, you delay the answer by thinking it will take a long time or that it is a major problem. Your subconscious has no problem. It knows only the answer. Sixth, believe that you have the answer now. Feel the joy of the answer and the way you would feel if you had the perfect answer. Your subconscious will respond to your feeling. Seventh, any mental picture backed by the faith or perseverance will come to pass through the miracle working power of your subconscious. Trust it, believe in its power, and wonders will happen as you pray. 8. Your subconscious is the storehouse of memory, and within your subconscious are recorded all your experiences since childhood. 9. Scientists meditating on ancient scrolls, temples, fossils, etc. are able to reconstruct scenes of the past and make them alive today. Their subconscious mind comes to their aid. 10. Turn over your request for a solution to your subconscious prior to sleep. Trust it and believe in it, and the answer will come. It comes all and sees all, but you must not doubt or question its powers. Yeah, 1 sec, we'll just take a break here. So अभी तक मैं इसको हिंदी में बता देती हूँ. इसमें ये इस वाले चैप्टर की समरी है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी भी रूप में सक्सेस चाहिए, अब सक्सेस के मायने हम सबके लिए अलग अलग होते हैं. For someone it could be getting a Mercedes, for someone it could be getting a lot of money, for someone it could be बहुत सारा उनको प्रॉपर्टी खरीदने का शौक है. कई लोगों को अवार्ड्स चाहिए, उनके सक्सेस के मायने वो हैं. कई लोगों के सक्सेस का मतलब होता है कि वो बहुत ब्रांड्स पहने, और कई लोगों का सक्सेस का मतलब होता है कि वो बहुत 5 स्टार होटल्स में जाके पार्टीज करें. कई लोगों का होता है ट्रैवल द वर्ल्ड करें. सो हम सबके मायने अलग अलग होते हैं, है ना, सक्सेस के, और सारे ही सही है. कोई छोटा कुछ बड़ा नहीं होता, या कोई सही या गलत नहीं होता. हम सब इंडिविजुअल और यूनिक एंटिटीज है. उस हिसाब से हमें सक्सेस का मतलब भी हमारा बहुत यूनिक होता है. ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने सक्सेस के बारे में जब सोचते हैं तो अपनी मेंटल इमेजेस को बहुत यूज करें, यानी कि इमेजिनेशन. इमेजिनेशन मतलब इमेजेस को हम अपने दिमाग में बार बार देखें एक फ्रेशनेस के साथ. कभी कभी इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि थोड़ा परसिवियरेंस रखो. मतलब कई बार होता है कि आप बार बार वो इमेजेस देख रहे हो, बट देन इट टेक समटाइम्स 1 month और 8 weeks, और बहुत सारे इसमें लोग हैं जिनका 3-3 महीने भी लगे हैं, है ना, क्योंकि हम इस बुक में बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनको परफेक्ट पार्टनर्स चाहिए थे, जिनको बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए था. उस पर्सन के बारे में हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, जो सड़क पे चल रहा था, जॉबलेस, उसके पास पैसे नहीं थे, वो अनएम्प्लॉयड था, और बहुत ज्यादा दुखी था. तो वो एकदम ऐसे ही चल रहा था, और क्योंकि वो बार बार ये प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है, कि मतलब ऑल्दो 1 हफ्ते के बाद उसको वो फ्रेंड मिला था, तो 1 हफ्ते तक लगातार उसने किया दैट दैट मनी उसके पास आ रहा है एंड ही इज वेरी हैप्पी एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये इमेजिनेशन में वो देखता था कि उसके पास वो बहुत फाइनेंशियली फ्री है और फाइनेंशियली स्टेबल हो गया है. तो इस तरीके से वो जब 1 हफ्ते के बाद वॉक कर रहा था रोड पे, तो उसको अपना कोई ओल्ड फ्रेंड मिला जो उसकी प्रीवियस कंपनी में काम करता था. तो उसने बताया कि वैकेंसी वापस आ गई है, तुम अप्लाई करो. फिर उसने अप्लाई किया वहां पे, लेकिन उसके कुछ महीनों के बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया उस कंपनी का.
तो इस तरह जितना पैसा का इमेजिनेशन उसने किया था, जॉब मिल गई, लेकिन उतना पैसा उसको 3-4 महीने के बाद मिला, है ना, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट तो वो बाद में बना था थोड़ा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपको जरूर लेके जाता है वहां पे अगर आप रिपीटेड रिक्वेस्ट करते हो। तो इसमें 2 चीजें लिखी हुई है, विद द सेम फ्रेशनेस एंड परसिवियरेंस, ठीक है, ये चीज याद रखना। जैसे अगर कुछ नहीं होता है तो हम बहुत हताश हो जाते हैं कि मुझे ये काम करना था, ये हुआ क्यों नहीं, अभी तो मैं 2 महीने से इतना विजुअलाइजेशन कर रही हूँ, है ना, लेकिन हमें पता नहीं होता है ना हमने गड्ढा कितना खोदा हुआ था, हो सकता है बहुत डीप नेगेटिव सोचों का। तो नेगेटिव सोच का वो फिल करने के लिए कई बार सबकॉन्शियस में भी इतना लैक और डेफिशिएंसी होती है दैट उसको फिल करना थोड़ा सा टाइम लगता है, हो सकता है 1 महीना लग जाए, 8 हफ्ते लग जाए, लेकिन रोज रात को आप सोने के पहले आपको उसी फ्रेशनेस के साथ सोचना होता है, एज इफ वो ऑलरेडी डन है, और एक्साइटमेंट एंड जॉय फील करो कि होने के बाद कैसी फीलिंग आती है, कैसा इमोशन आता है। Okay, that is what we need to do. And then going forward, of course, all that is going to become easier and easier for you. और persevere बहुत जरूरी है कि आप लगातार उसको करते रहे, ये बहुत जरूरी है। डोंट गिव अप, ठीक है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, डज नॉट मैटर, सबकॉन्शियस विल नेवर टर्न डाउन योर रिक्वेस्ट। अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करी है सबकॉन्शियस से, ऐसा कभी नहीं होता है कि वो आपको नहीं मिले। इट जस्ट दैट टाइम डिले कई बार होता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी कंपनी में जाना चाहते हो या किसी तरह की कंपनी खड़ी करनी है, तो उससे रिलेटेड जो 10 लोग हैं उनको भी तो यूनिवर्स को आपके पास लेके आना है ना आपकी जिंदगी में। हो सकता है एक पर्सन जिनीवा में रहता हो, दूसरा पर्सन जापान में रहता हो, ओकिनावा में, अब वो सब आपकी जिंदगी में आएंगे क्योंकि आपका वो आपके को क्रिएटर्स है आपके सुपर सक्सेसफुल बिजनेस में जिसके बारे में आप सोच रहे हो। और यूनिवर्स वांट्स टू ब्रिंग दोज पीपल टू यू बिकॉज यूनिवर्स को आपकी मंजिल पता होती है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा आपकी मंजिल पता होती है, पता है कि कौन से रास्ते पे आपको चला के ले जाना है, क्योंकि आप बार बार उस मंजिल का एंड गोल देख रहे हो। तो वो राइट पीपल, राइट सिचुएशन, राइट सर्कमस्टांसेस को कॉन्ज्योर करने में ऑलरेडी बिजी हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि सारे को क्रिएटर्स जो आपके साथ हैं, आपके फ्यूचर के, आपकी जिंदगी के, या आपके ड्रीम वाले जितने भी को क्रिएटर्स हैं, they sometimes take time to fall into your life, you know, to come into your life. तो उनको लेके आने में हो सकता है 8 हफ्ते लग जाएं। उसके पहले 1 महीना रोज ड्रीम कर करके आपने सोच लिया बस मेरा तो हो गया, मेरा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, मेरी तो जिंदगी ऐसी है, ऐसी थी, ऐसी रहेगी। तो इस तरह से अगर सोच लिया देन यू गिविंग अप हाफ वे, है ना। तो इसलिए परसिवियरेंस एंड सेम फ्रेशनेस, आज भी इमेजिनेशन उसी फ्रेशनेस के साथ करो, और चीजें सोचो कि जब ये हो जाएगा तो और क्या क्या करोगे, और क्या क्या करोगे, एंड फील गुड एंड फील एक्साइटेड अबाउट इट, ठीक है। अंदर से जॉय, खुशी और एक्साइटमेंट का तड़का जरूरी होता है। तो बहुत जल्दी वो चीज, जिस तरह से आप एनर्जी डाल रहे हो, एक्साइटमेंट की एनर्जी पावरफुल होती है, ठीक है, ऑल्दो वो ग्रैटिट्यूड के नीचे होती है, और ग्रैटिट्यूड जरूर फील करो उस चीज के लिए। एंड लव की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वर्ल्ड में, ठीक है, यूनिवर्स में। सो लव की फ्रीक्वेंसी रखो, यू लव व्हाट वेयर यू हैव रीच्ड इन लाइफ। इमेजिनेशन में ही तो करना है ना, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। और आफ्टर ऑल वो आपकी ड्रीम थी, अपने ड्रीम से प्यार होना तो बहुत आसान चीज है। तो अपनी ड्रीम से प्यार करो, ग्रैटिट्यूड के भी ऊपर की फ्रीक्वेंसी लव होती है। सो ग्रैटिट्यूड ये मैजिक बुक में हम सीखते हैं, और पावर बुक में हम पावर ऑफ लव सीखते हैं, उसमें सिर्फ लव की बातें करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ग्रैटिट्यूड और लव में आप रहोगे, अपने आप यू विल मैग्नेटाइज योर ड्रीम लाइफ टू योरसेल्फ। चुंबक की तरह आपकी सपने की दुनिया आपकी जिंदगी में आ जाएगी, और ये होता है और बहुत आसानी से होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो सही गाइडेंसेस हमको मिल रहे हैं इन टॉपिक्स में, वो हमको बहुत ध्यान से सोचने, समझने और प्रैक्टिस करना है ना। सिर्फ ज्ञान की बात नहीं होती है, जब प्रैक्टिस करते हैं उससे जिंदगी, जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस भी जो हम बुक नंबर 1 में पढ़ रहे हैं मैजिक में, बहुत हम में से अगर ज्ञान हम ले रहे हैं तो हमारी जिंदगी, ज्ञान तो हमको था ही, हमको कब ज्ञान नहीं था, हमको पता नहीं था थैंक यू बोलना है,
हमको पता नहीं था कि डेप्थ से थैंक यू बोलना चाहिए, लोगों की आंख में देख के बोलना चाहिए, ऐसे नहीं वो करना चाहिए, हमको बैड फ्रीक्वेंसी में नहीं रहना चाहिए, हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमको लोगों के बारे में पीछे से बात नहीं करनी चाहिए, हमको हमेशा सहायता करनी चाहिए। ये सब हमने मॉरल साइंस में पढ़ा है, हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है, और फिर जब हम बड़े हो गए तो ये ज्ञान हमारे पास खूब सारा आ गया है। हमको तो हमेशा से पता था, हमको पता था हमको वेट लॉस करना है तो हमको जिम जाना चाहिए, हमको वॉक करनी चाहिए, हमको खाना में बहुत ज्यादा डीप फ्राइड नहीं खाना चाहिए, पता नहीं था। हम कर पाए क्या? लेकिन नहीं कर पाए ना, क्योंकि हमने प्रैक्टिसेस नहीं करी थी। ज्ञान था हमको, ठीक है, सारी चीजें पता थी कि वजन घटाने के लिए हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, सुबह जल्दी उठ के वॉक करने जाना है, कोशिश करके शाम को भी थोड़ी वॉक करनी है, खाना बहुत ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करना है, जिम है तो हमको जिम जाना है, जिम में हमको ये वर्कआउट्स करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से पता होती है, ज्ञान बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा ज्ञान है हमारे पास, ठीक है। बट उसमें से कितना ज्ञान आप फनल करके पुट इट इनटू प्रैक्टिस करते हैं, इससे आपकी जिंदगी डिटरमिन होती है। सेम थिंग मैजिक बुक में, ज्ञान सारा है, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिसेस अगर कर रहे हो, जिंदगी आपकी उसी से बदलेगी। जिंदगी आपकी ज्ञान से नहीं बदलती है। अगर आप बस थैंक यू ऐसे ही बोलते रहो, सोचो कि नहीं नहीं मैं तो बहुत ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ पूरे टाइम, अब मैं प्रैक्टिस ना भी करूं तो चलेगा, नहीं। इसमें लिखा हुआ है ना, सेम फ्रेशनेस एंड परसिवियरेंस, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो फ्रेशनेस हमेशा होनी चाहिए, चाहे आप ये 100 टाइम में किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। मेरा तो आई थिंक 33rd 34th टाइम, 36 भी नहीं, 40th टाइम है ये मैं बुक पढ़ रही हूँ, मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रही हूँ 40वीं बार। अभी भी मुझे ये नहीं लगता, मुझे पता भी नहीं कि मैंने लास्ट टाइम पता नहीं कौन से 3 मैजिकल लोगों को थैंक यू बोला है, ठीक है। इस बार मैं सोच के अलग निकालूंगी, तो इस तरह कई बार वो रिपीट होते हैं, कई बार नए भी होते हैं। So the person who had taught me how to drive, तो उस पर्सन को भी मैंने एक बार किया हुआ, ये मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, क्योंकि मुझे इतनी फ्रीडम लगती है कि मैं अपनी गाड़ी उठा के कहीं पे भी चली जाती हूँ, एंड आई एम वेरी गुड ड्राइवर, and not just here, I just go to Agra, I go to wherever, I go to Jaipur is also my Maika so I just go to Jaipur, I go to Chandigarh, और जो आसपास की जगह होती है, even Shimla and McLeodganj and all, so we just drive down, so it is like that. So much thank you to the person who had taught, right? So हर बार वो पर्सन अलग होगा, आप जितनी डेप्थ में जाते हो आपको बहुत सारे लोग ऐसे नजर आएंगे, फिर आपको लगता है अरे मेरी जिंदगी तो इतने लोगों के शोल्डर्स पे खड़ी हुई है जिन्होंने मेरी जिंदगी में डिफरेंस लेके आए, तो फिर आपकी जिंदगी बदलती है। जब उस डेप्थ में आप प्रैक्टिस करते हो तब जिंदगी बदलती है, ज्ञान से नहीं बदलती है। ज्ञान बहुत है हमारे पास, जरूरत से ज्यादा किताबें किताबें लिख सकते हैं ज्ञान पे, है ना, कि क्या करना चाहिए उस पे तो बहुत सारी किताबें लिख सकते हैं कि ये भी करना चाहिए, हमको ये भी करना चाहिए, हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमको खाना ऐसे खाना चाहिए, हमको बहुत अच्छे इंसान बनना चाहिए, अगर हम थक रहे हैं तो हमें दोपहर को भी सोना चाहिए, हमको ऐसे करना चाहिए, है ना, इस तरह से चीजें, हमको हील्स नहीं पहननी चाहिए, हमको वैसे उस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। पता नहीं, सबके अपने अपने माइंडसेट होते हैं, तो क्या क्या करना चाहिए इससे कोई लेना देना नहीं होता, आप क्या कर रहे हो प्रैक्टिसेस, उससे लाइफ डिटरमिन होती है। और यही हमको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये बताया हुआ है कि कोई भी परेशानी, भय, चिंता, प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, अपनी रिक्वेस्ट अपने सबकॉन्शियस को डालो, रात को सोने के पहले आपको जरूर जवाब मिलेगा। लेकिन जवाब मिलने के लिए आपको माइंडफुल होना पड़ेगा, क्योंकि हंचेस, इंस्पिरेशन कभी कभी अंदर से आते हैं, कभी कभी जवाब बाहर से आएंगे। 2 रैंडम लोग बात कर रहे हैं लेकिन उनकी बातों में आपका जवाब छुपा हुआ है, ठीक है। एकदम से वो जोर से बात कर रहे हैं, आप वहां से बस पास हो रहे हो, और वो एग्जैक्टली आपका सोल्यूशन होता है आपकी जिंदगी का। यू नेवर नो, कभी होर्डिंग पे आपको कुछ नजर आ जाता है, लाइक सपोज आप सोच रहे हो मैं ये करूं कि नहीं करूं, मैं ये करूं कि नहीं करूं, ये वाला बिजनेस, ये वाला काम, ये वाली जॉब लूं कि नहीं लूं, आपको सडनली आप चल रहे हो और कोई डिजिटल होर्डिंग लगी हुई है, उस पे आएगा गो फॉर इट और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, और एक बंदा दौड़ रहा है या कुछ ऐसा हो सकता है, वो किसी चीज का एड हो, लेकिन आपका जवाब उसमें था, उस बिल बोर्ड पे था, डिजिटल बोर्ड पे था जिसपे लिखा हुआ है गो फॉर इट। ओके, इस तरह से जवाब आते हैं, तो आपको माइंडफुल रहना बहुत जरूरी है। तो अपने सबकॉन्शियस को बहुत यूज करो और परेशान मत हो, है ना, ये बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू। 11th, the action is your thought and the reaction is the response of your subconscious mind. If your thoughts are wise, your actions and decisions will be wise. 12th, guidance as a feeling
an inner awareness, an overpowering hunch, whereby you know that you know. It is the inner sense of touch. Follow it. Okay, so we are done with that chapter, and now we have time enough to start with. So I was just trying in my own way that अब हम कोशिश करें कि 30-35 minutes में हम पहली book खत्म कर देंगे, so that we get like almost 40 to 50% of the time to read the second book also. So that's okay. Last वाला point बहुत important था कि guidance hunches के for inspiration के रूप में आता है या बाहर से आता है, तो आप माइंडफुल रहो और उस गाइडेंस पे चलो जो आपको अंदर से, कभी कहते हैं ना मेरी इंट्यूशन मुझे ऐसे कह रही है कि आज मुझे जाना चाहिए, कभी कभी इंट्यूशन कहती है कि आज नहीं जाना चाहिए, कभी कभी आपको बहुत दिल करता है कि आज मैं केक खाती हूँ, आज मुझे केक खाने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है, जस्ट डू इट। बिकॉज जब आप केक ऑर्डर कर रहे हो या आप लेने के लिए जा रहे हो या खाने के लिए जा रहे हो, कहीं पे किसी बेकरी जा रहे हो, दैट आई जस्ट पिक अप द केक। सपोज आप कहीं बाहर गए हो शॉपिंग करने, आपको मन कर रहा है दैट आई रियली फील लाइक ईटिंग अ केक टुडे और आई वांट टू हैव अ डोनट, ठीक है, तो आप ऑलरेडी बाहर हो, आप किसी पैटिसरी में जाते हो डोनट खरीदने, किसी बेकरी में जाते हो डोनट खरीदने के लिए, अब वो आपको इंस्पिरेशन अंदर से आई थी और बहुत दिल कर रहा है ये कुछ करने का, डू इट, ठीक है, बिकॉज आपका लाइफ पार्टनर आपको उस बेकरी में मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से लाइफ चलती है। सो अगर कोई इंस्पिरेशन हंच आती है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, ठीक है, यू विल गेट इट इन दैट पेटिसरी जहां पे आप गए हो अपना डोनट खरीदने के लिए, and randomly, you know. So if you really feel like doing something, just do it. Don't wait for tomorrow, okay? Tomorrow never comes. किसी ने सही बोला है, जो है आज है, तो इसलिए कभी भी कोई दिल कर रहा हो ना कोई चीज, तो उसको कर लो खुशी से। जब करते हैं तो आप खुशी से वो डोनट भी खाओगे तो आपका पसंद भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपके कितना ग्रैटिट्यूड, कितने एक होता है कोपिंग के लिए, जैसे अगर कोई ओवर सोशलाइजिंग कर रहा है तो हो सकता है कि वो कोप करने की कोशिश कर रहा हो, उसकी जिंदगी में कोई वॉइड है। एक है मजे करने के लिए, आपको पता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं बहुत हंसती हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़िया हो जाती है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो अभी ब्लॉक थी वो फ्री फ्लो के साथ आने लग जाती है, ठीक है, तो वो अलग चीज होती है, वेर यू इंजॉइंग, यू हैप्पी एंड टू डबल अप योर एंड ट्रिपल अप योर हैप्पीनेस आप ये कर रहे हो। एक होता है अपना वॉइड फिल करने के लिए, उसकी वजह से फिर जिंदगी चेंज नहीं होती ना, वो तो फिर हमको खुद ही अपने अपने वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। तो ये बहुत, कोई भी चीज अगर आपको बहुत दिल कर रहा है ना, आप खुशी से करो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मत सोचो सही गलत, अगर अंदर से आ रहा है ना कि आई रियली वॉन्ट, या फिर मुझे ऐसी आई वॉन्ट टू ड्रेस लाइक दिस, आई रियली लव इट एंड आई लव दैट कलर, like it is like that. Just say, because suddenly I don't know why when I woke up in the morning and I had that bar aa raha tha ki buy an orange top. I don't know why. It was so weird that buy an orange top. I still don't know that why that मैं फटाफट आजियो में गई और मैंने 2 टॉप्स को अपने बैग में डाला उसमें ऐप के ऊपर, although I have not really paid for it, मैंने अभी उसको खरीदे नहीं है, बट उसके बाद शाम को दोबारा से ये था, डिड यू बाय एन ऑरेंज टॉप? आई रियली डोंट नो, आई मे बी सम पार्टीज कमिंग जहाँ पे मुझे वो टॉप पहन के जाना है, या क्या रीजन है सोचना भी नहीं है मुझे, बट बार बार एन ऑरेंज टॉप, एंड आई डोंट वेयर टू मेनी टॉप्स एंड ऑल दैट, लाइक आई डोंट वेयर जीन्स मच बिकॉज दिल्ली इज अ हॉट वेदर, so I don't wear all those, but then I don't know like क्यों ऐसा आ रहा था बार बार, so I just thought चलो अंदर से बार बार ये आवाज आ रही है कि buy an orange top, and orange specifically, तो मैंने वो जो सर्च इंजन होता है उसमें orange top टाइप किया, orange tops for women, that is what I typed, और फिर उसमें से बहुत सारे orange की लिस्ट आ गई एकदम से, उसमें से 2 I picked up and I put it in the bag and I'm yet to buy. तो अभी भी वो हो रहा है, सो इस तरह के यू डोंट नो व्हाई बहुत वियर्ड हंचेस आते हैं कभी कभी, नहीं उस वक्त नहीं रीजन पता लगता है, लेकिन आई एम श्योर आगे पता लग जाएगा, सो इट इज लाइक दैट. So yeah, I mean like just follow your intuition and your instincts always, because there's always an internal guidance mechanism जो हमारे जिंदगी के अंदर, हमारी इंटेलिजेंस जो अंदर होती है सबकॉन्शियस, वो हमको बार बार बोलता रहेगा do this or go there or whatever it is, so just do it when you really feel like. Don't calculate too much. हम लोग बहुत कैलकुलेटिव हो गए हैं like इस चीज में, हर चीज के बारे में एनालाइज करना, ये करना,
कि ओ ये तो अगर मैंने ये वाला टॉप करी तो बहुत महंगा हो जाएगा, ये तो 2800 रुपीज का है, सस्ते वाले देख लेती हूँ, ये सब। ठीक है, नहीं, अगर पसंद आ रहा है और अगर आपका ठीक ठाक बजट में बनता है, मतलब अगर आप 2800 उस टॉप की अफोर्ड कर सकते हो, जस्ट बाय इट। ओके, डोंट थिंक ट्वाइस। ओके, इफ एनीथिंग दैट यू लाइक, बिकॉज मनी सर्कुलेट होता है, जोड़ने से मनी रुकता है, मनी खर्च करने से ज्यादा आता है। ठीक है, तो इस बात को भी हमेशा याद रखना। आप जैसे ही खर्च करोगे, और वैसे भी अपना आप एक एफर्मेशन ही बना लो, द मोर आई स्पेंड मनी द मोर आई रिसीव मल्टीप्लाइड सेवरल टाइम्स। ठीक है, सो द मोर यू स्पेंड मनी द मोर यू रिसीव मल्टीप्लाइड सेवरल टाइम्स, है ना? दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो या वी आर डन विद दैट चैप्टर कि सबकॉन्शियस माइंड का गाइडेंस सुनो, जो लास्ट वाला टॉपिक था उसको हमेशा याद रखना। और अगर स्पेशली आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगा है, तो जरूर उस गाइडेंस पे चलो, बिकॉज वही गाइडेंस आपको आपकी मंजिल तक लेके जाता है। और नाउ वी गो टू चैप्टर नंबर 13, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। अब हमें पता लगेगा क्यों अभी तक था गेट इनटू स्लीप ड्राउजी स्टेट, और लाइक स्लीप के पहले आप ये क्वेश्चन पूछो, ये सारी चीजें। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो लेट्स कंटिन्यू। मैम एक क्वेरी है मेरी। हाँ जी, मैम एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन एंड में प्रिया प्लीज, है ना? आई ऑलवेज आस्क ना रीडिंग के बाद कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग है तो कर ले, तो आई आंसर योर क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड। हाँ जी, प्लीज। Chapter 13. Deeply, regarding the 12th statement that it says, think wisely. So how can you state yourself, मैं कितनी wise हूँ for the subconscious mind? Guidance comes as a feeling, ये वाला। Ma'am, If 11th. your 11th. thoughts are wise, your actions and decisions will be wise. Which number? 11th. 11th, ma'am. Okay, 11th 11th. quote. The action is your thought and the reaction is the response of your subconscious mind. If your thoughts are wise, your actions and decisions will be wise. Wise का मतलब होता है wisdom use करना, as in अगर आपको कोई नहीं, छोटा एग्जांपल लेती हूँ मैं, तो बैंक लूटने का एग्जांपल ले रही थी कि अगर आपको कोई बैंक लूटना है या आपको कोई काम है जो आपको मॉरली लग रहा है आपको नहीं करना चाहिए। See, I'll just give you an example जो हम इंडिया में ज्यादा फेस करते हैं, प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की बात करते हैं, वो आई थिंक विल बी अ वेरी गुड एग्जांपल जिससे हमें समझ आएगा। सपोज आपके फादर इन लॉ हैं और आपके हस्बैंड और मतलब और आपका एक और ब्रदर इन लॉ है, यानी कि फादर इन लॉ के 2 बेटे हैं, है ना, या 3 बेटे हैं। अब उनको अपनी प्रॉपर्टी अपनी विल में डिवाइड करनी है तीनों के लिए। ठीक है, अब उनके टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं और उनका बैंक बैलेंस है ना। तो उन्होंने क्या किया, उनका पूरा बैंक बैलेंस 5 प्रॉपर्टी में से उन्होंने 2 प्रॉपर्टी अपने सबसे बड़े वाले बेटे को दी। ठीक है, सेकेंड वाले बेटे को उन्होंने बाकी की 2 प्रॉपर्टीज दी, और आपके किटी में 1 प्रॉपर्टी आई, वो भी सबसे छोटा वाला घर। ठीक है, आपको लग रहा है कि 5 प्रॉपर्टी में से उन्होंने 2 इतना ज्यादा पैसा उन दोनों को दे दिया और मेरा भी हक बनता है कि मुझे बराबर का मिले। ठीक है, और आप कंप्लेनिंग और ग्रज वाले जोन में चले जाते हो। दैट फिर आप ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये इस तरह से ले रहे हो, मतलब आपने ये चीज रिक्वेस्ट की है दैट मुझे भी बराबर का शेयर मिले। ठीक है, ये आपने अपने सबकॉन्शियस से पूछा है दैट मुझे भी बराबर का शेयर चाहिए। टू द इन्फिनिट इंटेलिजेंस ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड बाय डिवाइन ऑर्डर गिव मी माय शेयर। ओके, माय शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब आप किसी से लेके कोई चीज अपनी किटी में ले रहे हो। गॉट इट? लाइक आप किसी चीज से, अब है तो 5 ही प्रॉपर्टीज ना, इट इज नॉट अ वेरी वाइज थिंग टू से। आपको प्रॉपर्टीज पसंद है ना, आप अपने सबकॉन्शियस से करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करो। आप बोलो that to the power of my subconscious mind, please give me 1 crore so that I can buy a 90 whatever 2 crores that I can buy a nice beautiful condo in so and so place. ठीक है, that is a wise decision.
you will have that money, extra 2 crores coming into your account. Maybe it will take 6 months or whatever. That will be a wise decision. ये डिसीजन वाइज नहीं था कि आपने ये डिसीजन बनाया है कि मतलब उनसे लेके आपकी कभी भी हैप्पीनेस किसी की अनहैप्पीनेस पे रेस्ट नहीं कर सकती है. ठीक है, इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना है. So if Thank you. somebody is like, suppose आपको कोई पार्टनर चाहिए, now there is a person called Rahul. ठीक है, वो प्रिया से बहुत प्यार करता है. ठीक है, और आप राहुल से बहुत प्यार करते हो. अब आप बोल रहे हो सबकॉन्शियस माइंड, मुझे मेरी जिंदगी में राहुल चाहिए, बट राहुल तो प्रिया से प्यार करता है एंड दे आर मैडली इन लव विद ईच अदर, है ना, और उनकी बहुत अच्छी ब्यूटीफुल बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है. अब आपने इतना अनवाइज डिसीजन किया, आप वो इतने खुश हैं, ये नहीं कि आप उनकी शादी के लिए मतलब बहुत ब्लेसिंग दो उनको कि वो जल्दी से एक हो जाए, उनकी शादी हो जाए, बहुत अच्छी जिंदगी जिए. आप राहुल से पागलों की तरह प्यार करते हो और अब बार बार ये डिसीजन करने की कोशिश कर रहे हो कि राहुल मेरा हो जाए, ठीक है, और वो मेरे पास आ जाए. So that these are the things sometimes we go wrong in asking also. So just remember just one thing, okay, that you can never rest your happiness on someone else's unhappiness. That's very important. Okay, that's about it. That's I think maximum that I could explain. So make wise decisions. ऐसे नहीं कि किसी से छीन के कुछ इस तरह से आ जाए. आप मांगो ना, सबकॉन्शियस का तो दिल बहुत बड़ा है और इन्फिनिट है. मतलब as I told you कि अगर आप 10 करोड़ भी मांगते हो, वो भी एक सागर में बूंद के बराबर भी नहीं है. ठीक है, तो वो कुछ नहीं है यूनिवर्स के लिए. इट्स नॉट इवन अ डॉट इन दैट होल ब्रह्मांड. सो इसलिए मेक वाइज डिसीजंस जो आपके लिए वाइज हो, जो आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी में आगे मुझे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स चाहिए, मुझे बहुत ग्लोबल आइकॉन बनना है, मुझे बहुत अच्छी फिट बॉडी, हेल्दी बॉडी चाहिए, यू नो, ताकि मैं बिल्कुल आई हैव द फ्रीडम टू ईट, डू, बी व्हाटएवर आई वांट टू. मुझे ड्राइविंग स्किल्स चाहिए ताकि मैं हर जगह फाइनेंशियल फ्रीडम हो, मेरे पास गाड़ी हो कि मैं बहुत अच्छे से कहीं पे ड्राइव करके जा पाऊं. ठीक है, मेरे बाल बहुत अच्छे लगे क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्यार है बहुत सुंदर बालों से. यू नो, मेरी बॉडी का वेट अच्छा होना चाहिए बिकॉज मैं हेल्दी रहूंगी तो मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, बहुत हॉट दिखूंगी. मुझे बहुत प्रोग्रेस चाहिए, मुझे बहुत सक्सेस चाहिए जिंदगी में. मेरी ड्रीम है कि मैं बहुत अच्छी जैगुआर एसयूवी खरीदूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है एसयूवी का गाड़ी चलाना. यू नो, शुरू से मेरा मन था कि मैं एसयूवी और स्टर्डी सी स्ट्रॉन्ग सी गाड़ी खरीदूं. आप अपने सपने देखो ना. ठीक है, कभी कभी हमारे डिसीजंस अनवाइज होते हैं जो वो किसी और से लिंक्ड होते हैं, बिकॉज उनका डिसीजन, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे के लिए आई ऑलवेज आस्क फॉर द कॉलेज ऑफ हिज चॉइस. अब मेरा मन है कि वो कहाँ एडमिशन ले, दैट स्टुपिडिटी ना. उसका फिर अपना क्या, उसकी फ्री विल का क्या. So that's what. So make wise decisions. You can't make decisions for someone else. You can't make decisions जो किसी का बुरा करेंगे. ठीक है, मतलब वो वाइज डिसीजन नहीं होता. तो इस तरह से, इसलिए सोच समझ के अपना रिक्वेस्ट टर्न ऑन करो. आपको क्या चाहिए ये आप देखो. अगर किसी और के लिए भी चाहिए तो आप ये सोचो कि जो उसकी ड्रीम गर्ल है वो उसको मिल जाए. ठीक है, यू कैन डिसाइड दैट पर्सन्स ड्रीम गर्ल. That is what it is meant for. Make decisions. If your thoughts are wise, your actions and decisions will be wise. नहीं तो conflict शुरू हो जाएगी. ठीक है, चलो, we'll go to the next one, which is chapter 13, your subconscious and the wonders of sleep. I think it's time. We'll have to start tomorrow only. So thank you so much. Okay. Thank you पुष्प. आपका नाम पुष्पेंद्र ही क्या? आपका कोई Thank you, Dipti. निकनेम मैम, मेरा Thank you, निकनेम इस पे ma'am, for बिट्टी such a सोडी लगा wonderful हुआ है. session. Thank you. थैंक यू, I थैंक will What's your यू. nickname? love you so much. बिट्टी, BITTI, बिट्टी सोडी. अच्छा, बिट्टी सोडी. So we'll call you Bitti. Is that okay? Yes, Ma'am, yes, मेरी ma'am. भी है. I am Bitti, you popularly explained. known as Bitti in my in-laws also. Okay. So we'll call you Bitti only. That's a very cute and a very sweet name, just like your voice was. Thank you so much for Thank reading you, it. thank you, thank you. Good morning, we everyone, know- and thank you, Dipti ma'am, Priya ma'am. Thank you. Yeah, thank you I so just much. started instantly. I don't Thank wish you, Dipti. anybody to good morning. No, you have read for the second time, I guess, Bitti ji. Yeah, I am ready for the second time. पहले भी मैंने सबकॉन्शियस माइंड ही पढ़ा था, बाई चांस उस दिन भी मैंने अच्छा, बोला तो था. अगली बार आप प्लीज मैजिक पढ़िएगा. Actually, जरूर. Yes. Actually, your name पुष्पेंद्र से मुझे लगा कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो फिर लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि मे बी यू आर बिट्टी जी, कुछ था ऐसा. बट हाँ, तो आज मुझे जैसे ही आप इन हुए ना, तभी मुझे लग गया कि हाँ, यू आर द वन.
Yes, thank you ma'am, thank you Priya ma'am, thank you So Deepti Priya ma'am. decoded. She's good at decoding. नहीं, उन्होंने हाँ मुझे जी। रात को सपोर्ट किया, आई वांट द पासवर्ड ऑफ द मीटिंग। मैंने कहा आई वांट टू ओपन इन द, इसमें सबकॉन्शियस माइंड का स्क्रिप्टिंग थोड़ा छोटा है, तो मैंने कहा मैं उसको आईपैड पे खोलना चाहती हूँ, तो शी हेल्प्स मी अ लॉट। थैंक यू प्रिया मैम, थैंक यू। अरे प्रिया बोलो प्लीज। थैंक यू। हाँ, हम लोग में से कोई मैम नहीं है बाय द वे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैम। नहीं नहीं, मैं भी मैम नहीं हूँ। मुझे तो विजय जी भी मैम बोलते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ प्लीज मेरा नाम दीप्ति है। अर्चना जी भी, वो मुझसे बड़ी है, मैं इतना सीखती हूँ उनसे, ठीक है, और वो भी मुझे मैम बोलती है, मत बोला करो मैम, मेरा नाम दीप्ति है। तो या ब्यूटीफुल चैप्टर, कल से हम ये पढ़ेंगे, ये स्लीप वाला चैप्टर पढ़ने में आपके स्लीप को इतने मायने मिलेंगे जिंदगी में, इट बिकम सो मीनिंगफुल बिकॉज स्लीप इज द टाइम जब हम अपने sleep यार, we dream and we become big in life because of the sleep की बहुत strong power होती है, और इसीलिए बिफोर स्लीप हमको हर जगह लिखा होता है get into that state and kind of really grow and progress. So beautiful chapter we're going to have and we'll read it tomorrow. हाँ जी, अब पूछो प्रिया, आप क्या पूछ रहे थे? यस मैम, एक्चुअली मेरी क्वेरी है कि जब मेरी ये कॉस्मेटोलॉजी की जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो अंबिका बत्रा मैम जो थे ना, उन्होंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी थी, एंड शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, एंड शी वाज अ ग्रेट लेडी, एंड उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर करा था। छुट्टी वाले दिन उन्होंने आके मेरा एडमिशन और मुझे बोला कि तू लेगी एडमिशन तो इसी इंस्टीट्यूट में लेगी, और आई वांट यू टू स्टे हियर, और मैं तेरे को टीचर बनाना चाहती हूँ। बहुत कुछ उन्होंने मुझे बोला, बहुत इंस्पायर करा कि आज ही एडमिशन लेना है करके, और उन्होंने इतने एफर्ट्स डाले थे ना मुझे कन्विंस करने के लिए, बिकॉज उससे पहले मैंने एज में खाली मेकअप का कोर्स किया था, और मैंने उनको फोटो शेयर करी थी कि मैंने ये करा है मेरे फाइनल एग्जाम में। तो मतलब उन्होंने बोला कि तूने हेयर स्टाइल सीखे बगैर इतना अच्छा करा है, तो मैं तो तेरे को छोड़ूंगी नहीं, VLCC में तेरे को एडमिशन देना है मैंने बाय एनी कॉस्ट। तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा डिस्काउंट भी दिया, सब कुछ दिया, और उन्होंने इतने अच्छे वर्ड्स बोले, मतलब शी यूज्ड टू से मी कि यू आर जस्ट लाइक अ वाटर, जिस भी जगह तुझे डाला जाएगा यू विल बिकम दैट। मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशन उन्होंने मुझे दिया था मेरी लाइफ में, एंड मतलब मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पाई जिंदगी में। और जब वो एक्सपायर हुई थी तो मैं अपनी मदर के साथ वहां पर गई थी, और मैंने देखा, मतलब मेरी मदर भी इतना मतलब अपसेट हुई ये देख के। और चलो आज आप ऐसे करना, आपको आज मैजिकल पीपल हु मेक अ डिफरेंस करना है ना, आप उनमें से एक अंबिका बत्रा के लिए लिख देना, ठीक है? I mean, you must, because she's only shaped your career and she took your admission and she gave you all that discount or whatever you're saying. और second person जहाँ पे is भी you. वो है, अंबिका को आज हिकअप सारे होंगे। Ma'am, second person is you also. Like you changed my life a lot. You don't have to tell me, you just write it, tell like as if you're telling me, like जब Thank ये you practice so जिस much. तरह से करनी है ना, तो Yeah. आप वैसे करना, है ना? करना अच्छे से, वो वैसी ब्लेसिंग मेरी जिंदगी में आ जाएगी। जैसे ही मेरा आज दिन भर में कोई बहुत अच्छी चीज होगी, मुझे याद आ जाएगा कि प्रिया तनेजा ने मुझे ऐसे बोल के की थी प्रैक्टिस, इसीलिए ये इतनी हैप्पीनेस या इसीलिए ये ब्यूटीफुल जो भी चीज है मेरी जिंदगी में आई है। Sure, ma'am. Thank you so Okay. much for super. Thank you, Priya. God bless you and wish you the best of life. Thank you so much. So do we log out for today? Okay. So thank you so much and see you all tomorrow. Do that practice बहुत अच्छे से. Thank you. Thank you. Thank you, Bye. ma'am. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Have a brilliant day. Love you so much. Thank you. Bye. Thank you.